all? Good evening, everybody. How are you all? So we'll continue with our lesson fair play. ठीक है ना? तो fair play lesson कर रहे थे हम. तो अभी तक का कहानी यहाँ पे मैंने quick recap बना के रखा है. हम will have a quick recap and proceed further. Right. So we saw that Juman Sheikh and Albu Chaudhary were good friends. It was so, like one used to go to the town, the other used to take care of the family. So that's the bond they had, that even their families they were able to take care if one was away. So their families also were good friends, that shows. All right, fine. So Juman Sheikh had an old aunt and she transferred the property. He transferred property to whom? To Juman Sheikh. All right. Okay. My voice is audible. My voice is audible, sir. Audible. All right. Okay. Yes, thank you. Okay, so let's continue. So Juman Sheikh said that, okay, Juman Sheikh had an old aunt who transferred property and they stayed together. So what did aunt say? That you have to look after me. What did she say? She said that you have to look after me. That was the condition because she transferred the entire property. So he has the entire money. He only expected them to take care of her. Right. So what happened? This wherever Juman Sheikh is come, I've written JS, standy note. Okay. The situation changed. After few couple of years, what happened? Juman Sheikh and his family, they were tired of looking after the aunt. Old aunt, they call them as Chachi. Right. तो चाची को देख देख के वो बहुत टायर्ड हो गए थे. फिर क्या हुआ? फिर ये जो मेन उनकी जो वाइफ है ना, बहुत ग्रजेस दिखाती थी हमारे ओल्ड आंट को. तो आंट को पसंद नहीं था. तो उन्होंने क्या बोला, मुझे मंथली अलाउंस दे दो और मुझे है ना दे दो करके. तो फिर उसके लिए जुम्मन शेख ने मना कर दिया. तो हमारी जो चाची है, शी बिकेम वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू गो एंड take the case to the panchayat. All right. So before going to the panchayat, she spoke to many people, like she spoke to the villagers. The villagers sympathized with her, laughed at her, and advised at her. Some people advised her, make it up. Make it up माने क्या है? चलो तुम लोग है ना सलाह कर दो करके मेकअप करने के लिए मेक इट अप करने को बोल दिया. दिस इज द फ्रेज. के बाद में हमारा अलगू जो है, अलगू को क्या बोला कि हाउ कैन आई गो अगेंस्ट. अलगू को भी जाके बात किए तो अलगू ने बोला कि हाउ कैन आई गो अगेंस्ट माय फ्रेंड. बिकॉज आपको तो मालूम है, आंट ने जाके अलगू को बोला कि तुम भी जाके जुम्मन शेख के अगेंस्ट आपके बात तो करो. तो अलगू ने बोला हाउ कैन आई स्पीक अगेंस्ट देम. ऑलराइट. सो देन आंटी वेंट टू द पंचायत एंड that time in the पंचायत हमने पार्ट 1 तक देखा कि अलगू को भी जाके आंट मिले थे. पार्ट 2 में शुरू होता है और पंचायत जो है बैठ जाती है. ओके. उसके बाद में वहां पर ये जो जुम्मन शेख है बोलता है कि लेट माय आंट नॉमिनेट द पंच. मेरे आंट जो है पंच को नॉमिनेट करने दो कि जिसको भी चुनेगी यहाँ से, किसको हेड पंच चुनेंगे वो ही न्याय देंगे. तो अलगू भी वहां पर बैठे हुए हैं. तो हमारे जुम्मन शेख बोल रहे हैं कि मेरी आंट जिसको भी चुनेगी, मैं उसको उसके वो जो भी पंच होगा, वो जो मेरे को डिसीजन देगा, उससे मैं सहमत रहूंगा. फिर उसके बाद में क्या होता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड करके हमारे जुम्मन शेख बोल रहे हैं कि जो भी पंच बोलेगा मैं मान लूंगा. तो फिर आंटी जो है अलगू चौधरी को ही पंच चुनती है. क्या करती है हमारी आंटी? जो अलगू चौधरी है उन्हीं को ही पंच करके चुनती है. इतना तक हमने देखा था. तो अलगू बता रहे हैं कि आंटी आपको मालूम है कि मैं जुम्मन शेख का दोस्त हूँ, फिर भी आपने मुझे चुना. तो हमारी आंटी बता रही है क्योंकि हम मुझे मालूम है पंच जो है हमेशा न्याय ही करेगा करके. तो इतना तक हमने देखा था. चलिए, इफ यू वांट टू कॉपी डाउन दिस, प्लीज कॉपी इट डाउन सो दैट आई कैन नेक्स्ट गो टू द I can we can continue the story. Yes, can I go to the next?
Can I rub the boat? Let me know through in the chat box if I can rub the boat. Then we can proceed further. I hope you all have copied it down. So I'm going to the part 2. I'm continuing with the part 2. Let's do it because there's part 3 also in this lesson. All right. I hope you all have written it. Okay. चलिए तो कहाँ पर थे? तो हमको हमारे जो अलगू चौधरी है क्या न्याय देने वाले हैं हमारे आंटी को हम देखेंगे। अलगू चौधरी जो है हमारा सुमन शेख का फ्रेंड है एंड लेट्स सी वेदर ही इज गेटिंग जस्टिस फ्रॉम अलगू चौधरी। तो यहाँ पर पंचायत जो है उसी शाम को बैठ गई, वो सब हमने देख लिया था। तो आई नो मैं पढ़ रही हूँ साथ में। हमने यहाँ कहाँ पे छोड़ा था? चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद सुमन सेड अलगू, वहां तक हमने छोड़ा था। I know that replied aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. तो हमारी आंट क्या बोल रही है कि मुझे मालूम है कि तुम अलगू तुम दोस्त थे, मगर you will not kill, you will not kill your conscience। यानी अपने अंदर जो अंदरी आत्मा बोलते हैं ना, तो आपका जो कॉन्शियस है वो आप है ना फ्रेंडशिप के नाते से सेक ऑफ फ्रेंडशिप के नाते किल नहीं करोगे, यानी मार नहीं डालोगे करके बता रही है हमारी काकी। ऑल राइट, ओके। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि गॉड जो है किसके हार्ट में कार रहते हैं? पंच के हार्ट में रहते हैं। मैंने यहाँ पर पंच हाथ को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो गॉड जो है लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ऐसे लिख सकते, लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और एंड इट्स वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और ये जो पंच का जो वॉइस है वो भगवान के गॉड वॉइस जैसा है, गॉड के वॉइस जैसा, यानी पंच जो भी बोलेगा भगवान ने बोल दिया और मैं मान दूंगी। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, फिर ओल्ड लेडी ने जो आंटी जो है अपना केस जो है एक्सप्लेन कर रही है, किसको? पूरा, क्योंकि सबके सामने केस रखना पड़ता है ना, तो इसलिए वापस एक्सप्लेन कर रही है। के बाद में एक्सप्लेन किया। फिर जुमन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, फिर जुमन सेड अलगू, फिर अलगू बोल रहे हैं जुमन तुम और मैं जो हो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मगर you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you are. और तुम्हारी जो आंट है वो मेरे लिए भी प्रिय है, dear to me। as dear to me क्या मतलब क्या है? कि तुमको जितनी प्यारी है उतनी मेरे को भी प्यारी है करके। Your aunt is as dear as to me as you. Now I am a punch, मगर अभी मैं जो हूँ पंच हूँ, तो यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, इसलिए मैं पंच होने के नाते यू और तुम्हारे आंट दोनों भी मेरे सामने जो हो इक्वल है। क्या हो? क्योंकि मैं पंच हूँ तो मेरे लिए मैं न्याय करने वाला हूँ। तू मेरा दोस्त हो फिर भी आंट भी मेरे लिए प्यारी है, और दोनों भी मेरे अभी समान हो मेरे आंखों के सामने। वॉट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, और तुमको है ना डिफेंस के तुमको क्या बोलना है बताओ। अभी आंट ने तो पूरी कहानी बता दिया है, आंट ने केस एक्सप्लेन कर दिया है, अभी तुमको क्या एक्सप्लेन करना है तुम भी बताओ करके बोल रहा है हमारा अलगू चौधरी। अगला लाइन पे जा रहे हैं, देखिए 3 years ago began जुमन my aunt transferred her property to me। तो हमारा जुमन से क्या बोल रहा है? 3 साल हो गए हैं कि मेरा आंट ने जो प्रॉपर्टी है उस मेरे नाम पे कर दी, करके प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्स, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि जब तक वो ये जी, ओके, आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर करके बता रहे। उसके बाद में आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने सब कुछ कर लिया है। क्या कर लिया है? मैंने और सब कुछ कर लिया है। देयर हैव बीन कपल ऑफ quarrels between my wife and her, मगर मेरे वाइफ और मेरे आंट के बीच में बहुत सारे quarrels माने झगड़े हो रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू मत, दोनों भी अपोजिट जैसे हैं, हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। ऑल राइट,
बट आई कांट स्टॉप इट, पर मैं इनको रोक नहीं पाया, इनका जो झगड़ा को मैं रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और मेरी जो आंट है मेरे से मंथली अलाउंस मांग रही है। क्या मांग रही है? मंथली अलाउंस। ये तो हमको कहानी से मालूम है, मगर ये सारे जो है वापस ये जो जुम्मन शेख है ना, अलगू को बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. और ये जो monthly allowance देना है, not possible, कि मैं नहीं देख सकता हूँ। ये ही अभी ये भी है आपके सामने जो भी थी। तो अगले पैराग्राफ पे जा रहे हैं हम। जुमन was cross examined by अलगू and others. तो ये जुमन को अलगू और अदर्स यानी कि बाकी भी पंच होते हैं ना, अलगू को जो है हेड पंच करके चुना गया, मगर बाकी जो भी पंच है ना, वो सब ने उनको एग्जामिन किया। एग्जामिन माने क्या बेटा? क्रॉस एग्जामिन माने सवाल पूछते हैं ना, आपने देखा होगा कोर्ट में सब जो वकील होता है बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो वैसे उनको क्रॉस एग्जामिन किया था। ऑलराइट, जैसे डॉक्टर हमारा एग्जामिन करते हैं, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन करते हैं। क्रॉस एग्जामिन माने वो इनका जो जो भी है उससे सवाल पूछते रहते हैं ताकि कुछ तो हल मिलने के लिए। देन Argo announced, we have gone into the matter carefully, कि हमने ये इन लोग सब पूरा carefully हमने सुना सबका, आंटी का भी सुना और सुमन सिंह का भी सुना। इन आवर ओपिनियन सुमन मस्ट पे हिज आंट, और मेरे हमारे आवर ओपिनियन माने अलगू और पंच, इनके ओपिनियन के हिसाब से क्या है, सुमन शेख को मंथली अलाउंस भरना, ये जो मंथली अलाउंस है ये उनको पे करना पड़ेगा, जुमन शेख को करके बता दिया है इसको मंथली अलाउंस, और एल्स द प्रॉपर्टी गोस बैक टू, वरना ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी है ना, वापस आंट को वापस कर देना है। हमारे आंट कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है? यहाँ पर है हमारे आंट। ओके, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी, तो अगर जुम्मन शेख महीने का अलाउंस नहीं देगा, तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी है आंटी को वापस कर देना है, आंट को वापस कर देना। समझ में आया बात? ओके। सो जज जज जैसे हमारा देते हैं, वैसे पंच ने अभी पूरा न्याय दे दिया है कि जुम्मन शेख हैज टू पे द मंथली अलाउंस टू आंट, एल्स द प्रॉपर्टी शुड बी गिवन। इसमें से दोनों को एक चीज उसको करना ही करना है करके, तो हो गया। जज बहुत बढ़िया दिया ना हमारे अंजू चौधरी ने। चलिए चलिए, अभी हम वापस नेक्स्ट पैराग्राफ पर जा रहे हैं। बोर्ड रख करो, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आपको ना बहुत इजी रहेगा। राइट, मैं बोर्ड रख कर रही हूँ। तो अभी क्या है, came to know that the aunt has got justice because she has been told that you are going to get the property or the monthly allowance. जुम्मन, तो वापस जुम्मन ने क्या बोला? नाउ द टू फ्रेंड्स सेल्डम केम टुगेदर। इस ये न्याय देने की वजह से ये जो दो फ्रेंड्स हैं वो सेल्डम यानी कि सेल्डम यानी कि क्या? नॉट ऑफन, मीनिंग दिया गया देखिए आपका, नॉट ऑफन यानी कि अक्सर नहीं साथ में पाए जाते थे, नहीं साथ में नहीं पाए जाते थे। ओके, तो सेल्डम सीन टुगेदर यानी कि उनकी दोस्ती टूट चुकी थी, इसका मतलब है नॉट सीन टुगेदर, नॉट सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और ये जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो टूट गया, फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो टूट गया था। ओके, ब्रोकन। इन फैक्ट जुमन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड टू रिवेंज। तो जुमन जो है, जेएस जो है, अलगू का एनिमी बन गया था और उससे क्या रिवेंज लेना चाहता था, रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहता था। तो दो दोस्त बन थे, इतनी फ्रेंडशिप उनकी गहरी थी कि एक दूसरे के परिवार को देखते थे। अभी वो दोस्ती टूट चुकी थी, ब्रोकन, ब्रोक, ब्रेक, broken, V1, V2, V3, all right.
Yes. Days passed by, and as ill luck would have it, Albu Chaudhary found himself in a tight spot. तो बहुत दिन गुजर गए, डेज पास बाय, अलगू जो है अपने आप को टाइट स्पॉट, अभी टाइट स्पॉट के मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत ही फिनेंशियली टाइट होना, फाइनेंशियल क्रंच जो है, और जो पैसे का वो बोलते हैं ना तंगी आना, वैसे उनको बहुत ही वेरी वेरी फिनेंशियली टाइट, so tight spot, found himself in tight spot. One of his fine pair of bullocks died. तो उनके जो बुलक है, पैर ऑफ बुलक्स जो है वो died, यानी कि मर गए. And he sold the other to समझू साहू, और एक था अदर, यानी कि एक पैर जो है उसने उसका मर गया, जो दूसरी जो थी अदर थी उसने बेच दिया, यानी कि सोल्ड. सोल्ड किसको सोल्ड किया, समझू, ये नाम है बेटा समझू साहू. तो एक एक जो पैर पैर यानी कि दो होते हैं ना, तो दो बुलक जो है गुजर गए, और जो दूसरा था उसको समझू साहू को बेच. वो कौन था ये समझू साहू, तो कार्ट ड्राइवर था, उसी गांव का था, ऑफ द विलेज, उसी गांव का एक कार्ट ड्राइवर था, उसको उसने बेच दिया. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. क्या अंडरस्टैंडिंग था, तो ये जो साहू है ना, वो है ना इस बुल्लक का प्राइस जो है एक महीने में, 1 मंथ में पे करेगा. व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग, कि अभी ले जाओ मगर एक महीने में तुम मुझे ये पैसा दे देने का करके खाओ. ओके, पे द प्राइस ऑफ द बुल्लक इन अ मंथ्स टाइम. It so happened the bullock died within a month. और ये जो बुलक है ना, ये अनदर बुलक जो साहू को बेच दिया, वो भी है ना एक महीने में, 1 मंथ टाइम में उसको पैसा भरना था, मगर वो 1 मंथ टाइम में ये जो बुलक है वो भी मर गई, तो वो भी मर गया था, बुलक ऑल्सो डाइड. अभी क्या करेगा, कौन पैसा देगा, इसीलिए कभी भी कुछ भी भेजो, रोकड़ा लो और भेजो, ऐसे भेजोगे तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम होगा. अभी वो क्या बोलेगा, समझू कि मैं नहीं पैसा दे सकता हूँ, तुम्हारी बुलक तो गुजर गई. So it is so obvious that's only going to happen. So let's see what it is. So what happened? Algu found him in a tight spot. What does a tight spot mean? Tight spot means a difficult situation. A difficult situation माने बहुत ही financially बहुत ही problem में होने को tight spot बोलते हैं. So it is when he whatever his pair of bullocks they died, and one other bullock he sold to Samju Sahu. Who was Samju Sahu? A cart driver, and then he was from the same village. And then यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही विलेज का है, क्योंकि यहाँ पर झगड़ा होगा तो उसी गांव के साथ जब पंच जाना पड़ेगा ना, इसीलिए देखिए 1 मंथ में वो जो बुलक का प्राइस वो पे करेगा करके उसने बोला था, अगर एक महीने के अंदर वो बुलक जो है मर गई. अभी क्या करेंगे, what happened is several months, 10th paragraph में हम, several months after the bullock's death, Albu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. तो several बहुत सारे महीने हो गए थे, several months हो गए थे, और अलगू ने इसको साहू साहू को रिमाइंड किया कि है ना तेरे को प्लीज वो पैसा दे दो करके रिमाइंड किया. साहू मगर वो पैसा नहीं दिया, साहू ऑफ द मनी ही हैडंट गेट पेड, और साहू ने अभी तक पे नहीं किया. साहू गॉट वेरी अनॉयड. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me. उसने क्या बोला, मैं है ना, साहू ने क्या बोला, आई कांट, मैं नहीं भर सकता हूँ, आई कांट पे, क्योंकि वो जो तुमने भेजा था वो एक wretched beast था. wretched मीन्स मैंने बेकार बीस्ट था, wretched यानी कि पुअर क्वालिटी और बैड क्वालिटी, ऐसे करके बैड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी जो है आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ, देखिए, ऑफ पुअर क्वालिटी और वेरी बैड. ओके, बैड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी. ओके, तो उतना वो बीज आपने मुझे भेजा था,
he brought us nothing but ruin, और he आने पे यहाँ ही बीच को बोल रहे हैं, he brought ruin, यानी कि हमारे लिए बैड लक ही लाया था, ऐसे the physical destruction होगा, हमारे लिए बैड लक ही लाया था. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. अभी मेरे पास है ना, ये साहू ने बोला कि मेरे पास एक बुलक है, तुम है ना 1 महीने के लिए रख के मुझे वापस दे दो. यूज इट फॉर अ मंथ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बुलक को 1 महीने यूज किया और वो मर गई, तो मेरे पास एक बुलक है, तुम यूज करके 1 मंथ यूज करके मुझे रिटर्न कर दो और वापस भी कर दो करके बोला. ओके, पैसा तो मैं पक्का नहीं दूंगा तुमको, मेरा बुलक ले लो 1 महीना, जैसे मैंने तुम्हारे बुलक को 1 महीना यूज किया और वो मर गई, जैसे तुम है ना मेरे को 1 महीने के बाद वो वापस कर दो. नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली. नो मनी, मैं मनी नहीं दूंगा उस डेड बुलक के लिए, उस डेड बुलक के लिए मैं नहीं दूंगा, नो मनी. अंडरस्टूड. अभी साहू, अभी हमारा अलगू चौधरी क्या करने वाला है मालूम नहीं है. चलिए हम देखेंगे, अभी तक हमारे पास समय है, सो वी कंटिन्यू द स्टोरी. So it's interesting so far, isn't it? So let's see what is Algu Chaudhary going to do now. Yes. So Algu Chaudhary had Algu Chaudhary and Juman Sheikh had become enemies. They were never found together again. And Algu Chaudhary found himself in a very tight spot. That means he was very, very financially not strong, not sound. Okay. So yes. So let's see what is going to happen to them. All right. Okay. अभी 11th पैराग्राफ पे हैं हम. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू पंचायत. अभी अलगू ने क्या किया कि चलो मैं अभी पंचायत जाता हूँ करके बोला, क्योंकि ये सही नहीं है, मैंने मेरा बुलेट दे दिया, वो गुजर गया तो मुझे तो पैसा मिलना चाहिए था. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, बहुत थोड़े ही महीनों में क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ होल्डिंग द पंचायत फिर पंचायत को खड़ा कर दिया, बिठा दिया. And both the parties started meeting people seeking their support. Both the parties यानी कि दोनों, ये साहू और अलगू दोनों लोगों से मिलने लगे. मीटिंग पीपल, क्यों पीपल से, क्या कि ये उसको सपोर्ट करे या इसको सपोर्ट, दोनों भी अपना अपना न्याय लोगों को बोलने लगे, ताकि वो जो लोग हैं इन लोग को सपोर्ट करने के लिए, जैसे इलेक्शन में होता है ना, वैसे इधर पंचायत में न्याय मिलने के लिए दोनों अपना अलगू और साहू दोनों लोगों से मिलने लगे, ताकि दे कैन गेट जस्टिस और दे कैन सीक सपोर्ट. टू पीपल से मिलने लगे, सीकिंग सपोर्ट. All right. Yes. Now 12th paragraph I'm going. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, the voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. तो वापस अभी पंचायत हो गया और अलगू खड़ा हुआ, जैसे हमारा जुम्मन से खड़ा होके बोला था ना, the voice of the punch is the voice of the god. The voice of the punch is the voice of the god. वैसे ही अभी अलगू बोलने लगा कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड करके बोलने लगा. ठीक है. लेट साहू नॉमिनेट, साहू जो है जिसको भी चुनने दो, नॉमिनेट द हेड, नॉमिनेट द हेड पंच, किसी को भी हेड पंच चुनने दो, मैं उससे सहमत हूँ. अबाइड बाय द डिसीजन, अबाइड जैसे कि हमारा जुम्मन शेख ने बोला था ना, वैसे ही अबाइड बाय हिज डिसीजन. राइट. तो उसके बाद में क्या हुआ, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन. अभी साहू को मालूम है कि जुमन और अलगू दुश्मन है, इसलिए साहू ने चांस चुन लिया, चांस ले लिया, और जुमन को ही उसने जुमन को ही अपना ये हमारा जामुन लिख रहे कि जुमन, जुमन को ही हेड चुना था. ओके. क्योंकि अभी क्या है, उसको मालूम था कि साहू को अलगू और हमारा जुम्मन जो है दोनों दुश्मन है, क्योंकि पिछले पंचायत में
जुम्मन को के तरफ न्याय नहीं दिया ना, आंटी की तरफ ही अलगू ने न्याय दिया, तो ये जुम्मन जरूर बदला लेगा करके उसने जानबूझ के जुम्मन को हेड चुना। अलगू's हार्ट सैंक, अभी अलगू का हार्ट जो है मेरा सैंक, सैंक माने क्या, क्योंकि उसको अभी हो गया कि जरूर मैं इस केस में लूज करने वाला हूँ, क्योंकि आ, ये तो जुम्मन मेरा दुश्मन है, अभी वो तो मुझे सपोर्ट नहीं करने वाला है, इसलिए उसका हार्ट जो है डूब गया, जैसे बोलते हैं ना डूब, एंड टर्न्ड पेल, और बहुत ही पेल हो गया। पेल यानी कि जब भी खून की कमी होते तो हम बहुत सफेद सफेद पीला पड़ जाते हैं ना, तो वैसे है ना, उसको डर के मारे वे बहुत ही पेल हो गया था। यानी कि जो डर के मारे कमजोर लगना या वीक लगना, उसको ही बोलते हैं पेन। ओके, बट व्हाट कुड ही डू, पर क्या कर सकता था, अभी उसने खुद बल बोला है साहू जिसको चुनेगा मैं मान लूंगा, अभी क्या कर सकता है, तो व्हाट कुड ही डू, व्हाट कुड ही डू, क्वेश्चन मार्क, राइट। बाद में उसने बोला कि the moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. तो जैसे ही जुमन जो है अपना पंच बन गया, तो उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी पंच बनता है ना बेटा, उनको है ना वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो एक जज है, और उस उनको न्याय सिर्फ ही देखना है करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, could he could he seated in that high place have his revenge now? इतना जगह, अभी तुमको सर पे तुमको एक राजा करके बिठाया है, इतना हाई बिठाया है, और उस टाइम में तुम क्या तुम्हारा रिवेंज लेने का सोचोगे या न्याय करोगे? तो इसलिए बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, could he seated in the high place have his revenge now? He thought and thought, उसने सोचा और सोचा, और उसके मन में क्या आया, नो, अभी मैं न्याय करना है, मुझे रिवेंज नहीं लेना है, मैं क्योंकि लोग मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे है ना चुना है। तो ही सेड दैट नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल फीलिंग्स है, अभी उसको बीच में नहीं लाना है मुझे, to come in the way of speaking the truth, और मुझे speaking the truth यानी कि सच बोलने का ही मुझे अभी करना है, speaking the truth and doing justice, और justice करना है। ओके बेटा, तो इज क्लियर, समय होने वाला है, और तो व्हाट विल बी लर्न, सो ही said that I am in such a high place and this is not the time to take revenge, because I should keep my personal feelings away and I should only be speaking the truth and doing justice. Such a wonderful thought, isn't it? Yes. Then we are doing the 15th paragraph and then we'll conclude. Both अलगू and साहू stated their case. वापस अलगू और साहू ने दोनों ने अपना जो है केस बताया सबके सामने, और क्रॉस एग्जामिन, जैसे पिछले केस में किया था ना, वापस क्रॉस एग्जामिन भी किया था, उनको सबको क्रॉस एग्जामिन किया था, एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, अभी जुमन ने खड़े होकर अनाउंस किया, तो जुमन ने अपना मेन क्या बोले हेड है ना, उसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of bullet. कि हमारा ओपिनियन है, हम हमारे राय से हिसाब से हमारा राय क्या है कि जो साहू है इस दे बुलेट करना चाहिए, बुलेट का प्राइस पे करे। When Sahu bought the bullet, it suffered from no disability or जब साहू क्यों क्यों ये करना है, क्योंकि जब साहू ने वो लिया था बॉट यानी गुल्लक को लिया था, तब उसने डिसेबिलिटी यानी कि कोई भी उसमें कमी नहीं थी। ओके, डिसेबिलिटी एबिलिटी नहीं थी या कोई उसको डिसीज नहीं था, यानी कि कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी उसमें खोट नहीं था या डिसीज भी नहीं थी, इसीलिए वो स्वस्थ था बेचने के टाइम में, तो ही हैज टू पे द प्राइस करके हमारी राय है करके उन्होंने बताया।
तो इतना तक हम कहानी पेज 15 पैराग्राफ्स खत्म कर दिए हैं हमने। तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे आपको कि इसके बाद इनकी दोस्ती क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत बढ़िया किया जुम्मन ने। उनका जो भी पिछला जो भी प्रॉब्लम है वो सब माइंड में नहीं रख के उसने पंच का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत खूबी से निभाई, और बहुत खूबी से उन्होंने जज किया कि बेचने के टाइम में वो गुल्लक का कोई डिसेबिलिटी नहीं था, इसीलिए जुम्मन को अलगू को साहू को पैसा भरना है। He has to pay the price for the bullock. That's a wonderful decision and justice given to the uh, to Algu Chaudhary from Human. Right. So let's meet the next class. Until then, bye bye. We'll see you in the next class. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir.